Hello friends. Yesterday I was discussing about Yuga Dharma. What social, economics, political crisis we are facing. How we have come here. What are the factors which led to this crisis and what is the solution? I briefly discussed about history of India, which is full of migration of people since the Bronze Age to the invasion of foreign tribes in the Iron Age. And these migration took place, migration and invasion both. Aryan migration and Scythians, Shakas, Hunas invasion. And the land grab in the name of religion. So who were these people? They were the agriculturalists who were known as Jata, Jaritra, Gate, in various dialects, Indo-European languages, different names for the same people, from central steppes, Asian steppes, vast land, from Siberia to as far as Europe, total about 9,000 kilometers area. So why they moved, these people? Because of some climatic changes and due to constant attack on them from the Turkic Mongolic tribes, particularly from the Mongolia. So they moved at different, in Middle East, Europe, South Asia, and inhabited greatly the land from Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. So from Sindhu Ghati to Ganges plain, Ganges Jamuna plain, north of Vindhyas and Aravalis. So these tribes were today known as Ajgar, Ahir or Yadava, Jat, Gujjar, Pratihar, right, or Gujaratis, and Ajgar, Rajputa or Rajasthani. So Rajasthani, Gujarati, Haryanavi, Punjabi, and all these are spread in the Gangetic plains. And their attitude to grab land and became big landlord, right? In the name of Dharma, distributing lands to the Brahmin cults, and they themselves became rich by exploiting people in their big lands or fields. So big farmers, and this big farmers community is still dominating all of this region, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. Why I am telling all this thing? And now this was a very fertile land, as we know. So lot population increase and green revolution, all with this we know. And now
ill effects of the green revolution, the water table going down, and the coming water crisis. So all of this region is having extreme climatic effects from Himachal Pradesh to all this region, extreme weathers, which is the cause of worry. So our economy used to be agricultural based, as we know. What does it mean? The agricultural was the main source of livelihood. Agriculture and associated trades, जिसे हम हथकरघा या कृषि के पे आधारित जो छोटे उद्योग हैं, जैसे बांस के चीजें, बांस की कटोरी, बांस के आपने देखा होगा टोकरी, सब चीजें, जितने भी कृषि पे आधारित जितने भी उद्योग, हथकरघा उद्योग जिन्हें बोलते हैं, टेक्सटाइल से लेकर कॉटन फील्ड्स, टेक्सटाइल, कॉटन, cotton, these tribes were mostly using since ancient times cotton. जैसे चाइनीज सभ्यता सिल्क सभ्यता जानी जाती है, वैसे ही भारतीय सभ्यता कॉटन सभ्यता जानी जाती थी. So this all paddy fields and paddy fields of the east. Now as the climate moving, we can definitely see a crisis in whole of this region, northern region, and most likely people will migrate again to the east side. So future is clearly eastern India. Western India is already industrialized. Why it is industrialized? Because of the excessive pressure on agriculture. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, फील्ड्स डिवाइड होती गई, भाई भाई आपस में लड़ते गए, बंटवारा होता गया, छोटी छोटी फील्ड्स हो गई बड़ी की जगह. तो छोटी छोटी फील्ड जो है इकोनॉमिकली वायबल नहीं. फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से बहुत से लोग शहरों में मूव हो गए पढ़ लिख के, राइट. सो दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पहला फेज में हम लोगों का हुआ आज़ादी के बाद, जो पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई, उसमें एक बैलेंस स्ट्राइक किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने का, कि जो एक्सेसिव पॉपुलेशन है, भार है कृषि के ऊपर, वो एक्सेस लोग जो हैं उनको हम लोग इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब करें, राइट. पर उसके बाद हम लोगों ने देखा अहमदाबाद, उसका नतीजा क्या हुआ. अहमदाबाद की मिलों में जो यूपी बिहार के लोग आ गए, महाराष्ट्र की मिलों में कैसे माइग्रेशन हुआ, ईस्ट टू आपका बिहार, बंगाल, बिहार, यूपी, इन सब से माइग्रेशन किधर हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र. इससे क्या हुआ, इससे हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, दंगे फसाद. अहमदाबाद क्राइसिस, 1969 दंगे, उसके बाद आपको रिवॉल्यूशन मालूम है जयप्रकाश नारायण का, छात्र आंदोलन आपको अहमदाबाद से, जो विच वॉज लेड बाय द छात्र आंदोलन. छात्र आंदोलन, उसके पीछे क्या थे, जो लोग अहमदाबाद की जो मिलें बंद हो गई या वो हो गई, उससे जो मजदूर बेरोजगार हो गए, बेरोजगार युवा बेरोजगार. तो आंदोलन किसके जरिए हुआ, युवा बेरोजगारों के जरिए. कोविड के बाद क्या हुआ, लेबर क्राइसिस, आपने देखा कि क्या हालत हुई उनकी. उसका रिजल्ट क्या है, अब युवा बेरोजगार. ये युवा बेरोजगार क्या करने वाले हैं, ये दंगे फसाद और क्रांति करने वाले हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं विभिन्न फॉर्म में. बजरंगी दल और ये जितने दल हैं,
इनकी प्रॉब्लम धर्म की तो देखने में लगती है कि ये धर्म की प्रॉब्लम है कुछ, काउ विजिलेंटी हैं या कुछ कुछ, बट इनका काउ विजिलेंटी फिजिलेंटी कुछ नहीं है। ये बेरोजगार लोग हैं जो कि इनको अब कोई इनके पास चारा नहीं है, और क्या करेंगे, इनके पास कोई चारा नहीं है। ना इन हीनता की भावना से, कुंठा की भावना से, बदले की भावना से, भूख से, लाचारी से, हीनता से ग्रसित लोग हैं। और जाहिल तो हैं ही हैं, जाहिल, हीन, खुंदक खाए हुए, सताए हुए, अत्याचार सहे हुए, सिस्टम का अत्याचार, राइट। तो इस मेंटालिटी के ये लोग हैं, युवा लोग, जिनका कि ऑलरेडी खून उबलता रहता है। तो इनका काम ये लोग करने क्या वाले हैं, वही करने वाले हैं जो गुजरात से लेकर, गोधरा से लेकर, राम मंदिर से लेकर, और जितने आप दंगे फसाद देख लो जगह जगह, ये सारा कौन सा रीजन है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यही रीजन है, कोई साउथ इंडिया नहीं है इसमें, राइट। नक्सलाइट, जो ईस्ट इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो नक्सलाइट की प्रॉब्लम, वो दूसरी तरह की प्रॉब्लम है। नक्सलाइट की भी वही प्रॉब्लम है, वो उद्योगपति जो वहाँ पर उनकी खनिजें और वो लैंड ग्रैब कर लेते हैं और आदिवासियों को विस्थापित कर देते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम ईस्ट इंडिया की है वो आदिवासी लोगों की प्रॉब्लम है, और जो ये जो रीजन में जो प्रॉब्लम है वो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चरलिस्ट की। ठीक, इसको ठीक से समझ लेना चाहिए कि क्राइसिस का रूट किधर है, सोशल क्राइसिस का, इकोनॉमिक क्राइसिस का। और इसमें हमें हिस्ट्री अगर हम खोल के देख लें तो बिल्कुल वही चीज़ है जो रिपीट हो रही है, जो सेंट्रल एशिया में जो हुई थी, मारकाट, महाभारत, आपको सब पता ही है। महाभारत क्यों हुई, यही सब इन्हीं लोग के बीच में, भाई भाई के बीच में, किसके लिए, बंटवारा, राज का बंटवारा, जमीन का बंटवारा। मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, मुझे तो कफन के लिए दो गज जमीन भी नहीं है मेरे पास। बहादुर शाह ने बोला ना, बहादुर शाह जफर ने क्या बोला कि 2 गज जमीन न मिली इस कूचे यार में, बोला कि मेरी 7 पीढ़ियां खप गई भारत में, हैं, 7 पीढ़ियां मेरी खप गई भारत में, और मुझे 2 गज जमीन भी नसीब न हुई मरने के बाद भी। ये प्रॉब्लम है लोगों की। घर उजड़ गए, घर क्या, गांव उजड़ गए, गांव क्या, पूरा का पूरा उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे कितनी कम्युनिटीज हो। अब इसमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, ये तो सब बहाना होता है। असली मकसद होता है जमीन हथियाना, जमीन, जर, जोरू, तीनों चीजें, जमीन, दौलत और स्त्री। स्त्री को भी दौलत ही समझा जाता था हमेशा से, यही है धर्म। बाकी पूजा पाठ, देवी और फलाना ढिमाका तो सब नौटंकी है, वो नौटंकी सबको पता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिसको तंत्र बोलते हैं सबको पता है। आप खुजराहो से लेकर सन टेम्पल तक देख लो, किसने बनाया ये सब, यही गुज्जर प्रतिहार लोग, चालुक्य, गुज्जर प्रतिहार, यही सब राजस्थानी राजपूत जिनका डोमिनेंस होता था। इन्होंने क्या किया, खाली लूटपाट नहीं मचाई, इन्होंने सेक्स का तांडव मचा दिया, जिसको तंत्र बोलते हैं। आदिवासी महिलाओं, दलितों, शोषितों, इन सबको, इनको अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, अपनी, अब ये प्रॉपर्टी इनकी दौलत। ये मेंटालिटी के लोग क्या मर गए, खप गए, ये आज और भी ज़्यादा जीवित है। आज इनकी लालसा, विविध वासनाएं और चरम सीमा पे हैं। आए दिन आप बाबाओं के किस्से सुन लो, आए दिन इनके चमत्कार सुन लो, आए दिन
पता नहीं क्या क्या नौटंकीबाजी हो रही है, आप देख ही रहे, जिसको भी थोड़ी सी बुद्धि है। क्लाइमेट चेंज, वॉर, पाकिस्तान और चाइना का वॉर, वो डर दिखाया जा रहा है। तो वॉर तो होना ही है, बाहरी वॉर भी होना है, क्लाइमेट चेंज भी होना है, अंदरूनी वॉर हो ही रहा है। तो ये स्थिति ऐसी विकट स्थिति है जो कि 2000 सालों के बाद फिर से एक बार उपस्थित हुई है। उस समय तो कुछ गुप्ता एम्पायर आ गया, वर्धन साम्राज्य आ गया, कोई कोई पुराने सूर्यवंशी रहे होंगे, कोई रहे वंशी रहे, चंद्रवंशी रहे होंगे, उन्होंने कुछ इन लोगों को कंट्रोल भी कर दिया, लेकिन कंट्रोल में करते करते उनका पूरा साम्राज्य उनका खुद का दिवालिया हो गए। वो जैसे मुगल दिवालिया हो गए ना, फाइट करते करते। तो बड़े बड़े साम्राज्य जो है इन दंगे फसाइयों, और ये लोग दंगा कैसे करने वाले हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर में पक्के होते हैं, तभी ये सब छुप छुप के हमला करते हैं। ये कोई दे आर पारंगत, अरावली, विंध्याचल, ये सब नाम क्यों सुनाई पड़ता है? इन सब जगह देवी पूजक होते हैं। वो देवी पूजक क्या होते हैं? लुटेरे। जितने शिव पूजक हैं, जितने देवी पूजक हैं, ये कौन लोग होते हैं? नागा बाबा, ये सब कौन लोग होते हैं? हाँ, ये लुटेरे, छोटे ठग, जिनको ठग, अगर जिसने ठग मूवी देखी हो उसको पता हो जाएगा। ठग, लुटेरे, गुंडे, मवाली, यही सब काम वो ईरान में करते थे, अफगानिस्तान में करते थे, वो भारत में आके वही करने लग गए। इन लोगों ने प्रचार कर दिया कलयुग चल रहा है। अब कलयुग चल रहा है तो समझ ही जाओ, कलयुग में और घोर कलयुग आने वाला भी है। अभी तो पूरा तरह से आया भी नहीं है, अभी तो घोर कलयुग आने वाला बचा है, अभी कुछ और बचा है, पता नहीं क्या करने वाले हैं ये लोग। तो ये पूरी की पूरी कहानी उत्तर भारत की है, हिस्ट्री। तो उत्तर भारत में तो घोर कलयुग आने वाला है और आई दिख ही रहा है चारों तरफ, और इससे भी घोर होगा तो कुछ भी हो जाए। अभी विभत्स से विभत्स चीजें तो आप देख ही चुके हो, सुन ही चुके हो, या भुगत भी चुके होंगे कुछ लोग। तो अभी क्या देखना बाकी है? कौन सा घोर कलयुग देखोगे? आज मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था स्किथियंस के ऊपर, तो बोलते थे कि वो लोगों को जब मारते थे तो उनकी गर्दन काट लेते थे, फिर गर्दन काट करके क्या करते थे, बोलते थे कि उनका माथे से यहाँ से काटते थे, फिर कान से इस यहाँ से इसके निकाल के, मुंह की इसके निकाल के उसका रुमाल बनाते थे। फिर क्या करते थे, फिर बोलते थे बॉडी की स्किन निकाल के उसकी छाल बनाते थे, वो छाल अपने घोड़े के ऊपर बिछाते थे। और जिसने जितनी गर्दन काट के लाए उसको उतना रिवॉर्ड मिलता था। तो रिवॉर्ड मिलता था गर्दन काट के लाए, ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है, पर ये चीज़ मैंने नहीं सुनी कि मुंह की स्किन निकाल के उसकी रुमाल बनाना और बॉडी की स्किन खींच के उसकी छाल बनाना, सब तो मतलब है ऐसा। तो कैन यू इमेजिन? ये सब तो पुरुषों के संग, और महिलाओं के संग तो जो विभत्स है वो तो वैसे ही, तो मतलब उसकी कल्पना भी छोड़ दो। जहाँ पर जिंदा स्त्रियों को जला दिया जाता हो, रहम ना आता हो किसी को, उस समाज की क्या बात करी जाए? जहाँ बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाए, नवजात शिशु को नदी में बहा दिया जाए, उसके बाद जब सूखा उखा पड़ता है तो लोग तो अपने बच्चे अंचों को मार के खा जाते हैं, तो पता ही है आपको। तो ये वहशीपन का और विभत्सता की पराकाष्ठा है। अब इसमें और आप क्या देखोगे कि सुनोगे? अभी क्या बाकी है? ये क्राइसिस है, ये पहले भी थी, आज भी है, और इनके पीछे कौन लोग हैं, किस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको आप जो नाम दे लो, उनको आप जाट कह लो, गुज्जर कह लो, क्षत्रिय कह लो, मनुष्य कह लो,
मनु की संतान कह लो, राजपूत कह लो, कुछ भी कह लो, नाम से क्या फर्क पड़ेगा। असुर कह लो, सुर कह लो, दैत्य कह लो, दानव कह लो, जो मर्जी आए कह लो, अलग अलग समय पे अलग अलग नाम दे देते हैं लोग। इंडियन कह लो, हिंदू कह लो, मुस्लिम कह लो, कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी क्या? है? नहीं चेंज होने वाली है। तो हम लोगों का क्या युग धर्म है अभी, ये समझ के इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको सरकार से कोई पूर्ति नहीं होने वाली। सरकार आपको कोई राशन कार्ड देकर और फोकट का भोजन नहीं देने वाली कि आप उसके भरोसे बैठोगे। ना आपको नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, नौकरी तो देगी ही नहीं, है ही नहीं तो देगी क्या। आपको भूखे मर जाओगे तो आपको 2 दाना अनाज भी नहीं मिलेगा। उसको आप भाग्य को कोस लो, चाहे भगवान को कोस लो। आज एक किसी ने आर्टिकल भेज दिया, हुई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अब जो राम जी ने लिख रखा है वही तो होना है। और राम जी ने क्या लिख रखा है? घोर कलयुग। और राम जी ने कभी कहीं पे ये तो दिखा नहीं कि राम जी ने लिखा हो कि उसमें कली अवतार होगा। तो अब बोलते हैं लोग कि घोर कलयुग आएगा, फिर कली अवतार होगा, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। ये सब लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? कोई भविष्य पुराण में लिखा है, तो पता नहीं कौन से पुराण में लिखा है। तो जब वो कली अवतार होगा, जब आपका उद्धार होगा, तब तक आप वेट करो। तब तक आपका बुलडोजर चलेगा आपके घर पे, आपका घर जला दिया जाएगा, आपकी स्त्रियों का बलात्कार होगा, आपके बच्चों को मार दिया जाएगा आपके सामने, आपके मुंह की स्किन उतार के उसकी रुमाल बनाई जाएगी, आपकी बॉडी की स्किन छील के उसका जो है छाल बनाई जाएगी। इसके लिए तैयार रह जाओ। और उसके बाद जो बच जाएगा वो समझ ले कि ये सब तो हुई है सोई जो राम रखी राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब ये सब डिस्कस करके क्या होगा, बात करके क्या होगा? मतलब डिस्कस भी मत करो, फिर सॉल्यूशन ढूंढने की तो सोचो ही मत, फिर सब एक्सेप्ट कर लो। है युग धर्म और फलाना धर्म, और भगवान की कृपा और शुभम कल्याणम। और ये बाबा जी, वो बाबा जी, ये ज्योतिषी, वो भविष्यवाणी सुन सुन के खुश हो। तो मैं ऐसे लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा। ऐसे मतिमंद, जिनको न पिछला मालूम न अगला कुछ मालूम, कुछ सोचने की भगवान क्या इसमें करेगा। अगर भगवान ने करा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। इसमें और भगवान का कोई काम ही नहीं। भगवान ने पूरा फ्रीडम दे दिया है। क्या फ्रीडम दे दिया? बोले कि तुम्हें जो करना है करो, पूरी फ्रीडम। तो मार काट करने की फ्रीडम है तुम्हें। 2-4 को तो मार लो, नहीं तो मर जाओगे, मार दिए जाओगे। एक ऑप्शन क्या है कि जब आपके चारों तरफ गुंडे मवाली लोग हैं, तो जैसे अमेरिका में है ना, लोग पिस्तौल रखते हैं अपने पास अपना बचाव के लिए, तो आप लोग भी स्मगल कर लो कहीं सर। जैसे पाकिस्तान में स्मगल कर लेते हैं ना लोग आर्म, अमेरिका में भी बिना लाइसेंस वाली तमंचे रखते हैं अपने हाथ में। और उसके बाद त्रिशूल, तलवार, इनके लिए तो लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। तो कम से कम त्रिशूल रखो, तलवार रखो, 2-4 को मार दो, खत्म करो कहानी। मरना तो है। तो बलिदान दे दो, धर्म की रक्षा के लिए मर कट जाओ।
बदला ले लो इन लोगों से। हजारों सालों से तुम्हें ये एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है कुछ तो मतलब दिल को थोड़ी ठंडक तो पहुंचेगी कि मरे तो लेकिन दो चार को मार के मरो जब मरना ही है तो ये सब चिंतन का विषय है। भगवान ने अगर आपको क्षमता दी है तो मैं कोई सॉल्यूशन देने के लिए बैठा ही नहीं हूं, मैं तो आपको उद्वेलित करने के लिए बैठा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा हो, वो कुछ सेंस उसमें लग रहा हो, कुछ उसमें आपको कुछ तथ्य कुछ समझ में आ रहा हो, हिस्ट्री पढ़ना क्यों, लोगों के बारे में क्यों समझना, कल्चर क्यों समझना, और कल्चर कौन सा समझना, कल्चर समझ के क्या कर लोगे, संस्कृति समझ के क्या कर लोगे, वो तो दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले कौन से दांत हैं। वो राक्षसों के जो खाने वाले दांत हैं वो तो जब जबड़ा खोलेंगे ना तब दिखाएंगे कि वहां पे दो बड़े बड़े नुकीले दांत, वो तो दिखते नहीं है आपको वो नुकीले वाले दांत। आपको हाथी वाले दांत दिखते हैं, जो दूध पीने वाले दांत होते हैं वो बड़े बड़े सामने। जब मुंह खोलेगा तो आपको दूध पीने वाले दांत दिखेंगे, आपको खाने वाले चबाने वाले दांत दिखेंगे, वो तो पीछे हैं यहाँ पर। तो इनका जबड़ा जब आपको खोल के देखोगे ना तब आपको दिखेंगे वो नुकीले वाले दांत। तो जो दिखाने वाले दांत हैं वो ये सब है, धर्म है, संस्कृति है, पूजा पाठ है, मंदिर है, बाबा जी हैं, वो भक्ति रस में डूबे नजर आएंगे, उनके आंखों से भक्ति की धारा बह रही होगी, कोई तो झूम ही रहे होंगे बिल्कुल भजन में, राम रहीम की तरह। एक राधे माँ कोई होती थी उनकी तरह, राधे माँ मॉडर्न मीराबाई, वो झूमते झूमते बेहोश होकर गिर जाती थी। आप जाओ, अभी भी जाओ, कन्याकुमारी जाओ, बहुत से क्रिश्चियन कल्ट भी हैं, वहाँ बाबा जी हाथ रखेंगे, कोई पागलों की तरह से नाच रही होगी, कोई किसी के ऊपर माता जी आई होंगी तो सर को झटक रही होगी ऐसे ऐसे ऐसे। सूफी लोगों को देखा ना, चक्कर 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 वो चक्कर खाते रहते हैं, वो कत्थक में चक्कर खाते हैं ना तिहाई, तो वो ऐसी तिहाई मारते हैं जो तिहाई मारते ही रह जाते हैं और बेहोश होकर गिरते हैं। उनके जैसा कत्थक तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मैंने जब गया इजिप्ट पहली बार 2007 में, तो मैंने कत्थक देखा वहां पर। मैं सूफी लोगों का कत्थक भी देख लें जरा, अरे आधे पौन घंटे तक चक्कर लगाते रहते हैं। मैंने कहा ये तो भैया बड़े बड़े कत्थककार, हमारे तो बिरजू महाराज फेल हो जाए यहाँ पर इनके सामने, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये है उत्तर भारत। इन लोगों के बीच आप रह रहे हो, इनको आप जंगली बोलो, धार्मिक बोलो, हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, राक्षस बोलो, दानव बोलो, पर इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और आज की नहीं है। ये उनके ओरिजिन जहाँ आप देख लोगे तब से लेकर आज तक की है। और बाकी जो है वो दिखाने वाले दांत होते हैं। जिस दिन ये लोग असली रूप दिखाएंगे ना, जो कि 1947 में दिखाया था पार्टीशन के समय, तो महात्मा जी चक्कर में हैं, ये लोग चक्कर में कि मेरा पड़ोसी मेरे संग उठता बैठता था, अब ये तलवार लेकर मेरी गर्दन काटने चला आया। किसी को विश्वास होगा, किसी को विश्वास होगा कि आप जिनको दोस्त समझते हो, जिनको पड़ोसी समझते हो, जिनसे संग उठते बैठते हो, जिनके संग आप प्रेमालाप करते हो, जिनके ऊपर आपको पूरा विश्वास है, भरोसा है, वो गर्दन काटने को आ जाए, घर में आग लगा दी लाके। वो जाफरी कांड सुना है ना अहमदाबाद में, बेकरी कांड, जाफरी कांड,
कौन कौन से कांड? तब आंखें खुलती है। ये देखने वाले दांत और खाने वाले दांत तब समझ में आते हैं, खाने वाले दांत क्या होते हैं। मैं इसको और क्या चर्चा आगे बढ़ाऊं, मेरा तो मन वैसे ही क्षुब्ध हो रहा है, आपका भी क्षुब्ध हो गया होगा जो भी सुन रहे हैं। आपके पास क्षमता इतनी है कि सुन लिया। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ये तो होना ही है उत्तर भारत में, ये हिस्ट्री है। और ये लोग होना इसलिए है क्योंकि ये लोग मान के बैठे हैं कि अभी कोई चीज सुधरने वाली नहीं है और खराब समय आने वाला है। ये तो ये लोग खुद ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इनके तो उसमें लिखा हुआ है, एपोकलिप्स, एंड टाइम्स। ये बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े आचार्य पोथा खोल के बोलते हैं तो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है घोर कलयुग। अरे मैं बोलता हूं, जब घोर कलयुग लिखा हुआ है तो फिर ये आडंबर क्यों करते हो? अपने असली रूप में आ जाओ ना फिर, और असली रूप में आ ही रहे हैं इधर उधर। तो भैया आप में क्षमता हो तो अपना बचाव कर लो, नहीं तो आप ढूंढो कहां पर कौन सी आपकी सुरक्षित जगह है, वहां जाने की कोशिश करो। मेरा तो भाग्य था कि मेरी बुद्धि थी, मैं 2003 में छोड़ के निकल गया था। 2003 में, 2000 छोड़ के गुजरात में था, 2000 में गुजरात से पानीपत चला गया था। और पानीपत में सुनता था ये तो अर्थक्वेक आ गया, ये तो बड़ौदा में बाढ़ आ गई, ये तो मेरा घर जिसमें रहता था वो डूब गया था। उसके बाद सूरत में प्लेग आ गया, उसके बाद तो फिर ये कोई राक्षस चीफ मिनिस्टर बन गया। तो हमने कहा भैया अब ये मेरी किस्मत समझो, या बहुत अच्छा हुआ जो कि मैं गुजरात 2000 में छोड़ा, और 2003 में तो ऐसी अच्छी किस्मत पलटी कि मैं इंडिया ही छोड़ दिया। अब मैं सोचता हूँ कि भाई वो कौन सा समय होगा कि मैं वापस जाऊंगा, और वापस जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? तो मुझे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।